Hello student, today we are going to start the next plant part in our morphology chapter, and that is fruit. In the last class we have completed flower. Flower is quite fascinating organ of plant having many different parts, calyx, corolla, androecium, gynoecium और बहुत सारी वैरायटी, कई सारी टर्मिनोलॉजी भी है उसमें। फ्लावर में जब हमने गाइनेशियम पढ़ा था, गाइनेशियम कार्पल और कार्पल में हमने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात की थी। एट दैट टाइम वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एंटायर ओवरी गेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। Ovary get converted into fruit. In fact, in the ovary we are having the two-part ovary wall, and inside there is a chamber in which many ovules are there. When fertilization takes place and after fertilization, this ovary wall get transformed into fruit wall. It may be quite thick and fleshy, and the ovules get converted into seed. और इसीलिए हम देखते हैं कि फ्रूट के अंदर हमें सीड मिलते हैं, and the seeds are covered. ठीक है? And this is the unique feature of angiosperms. Angiosperms are also called flowering plants. Flower bearing plant, flower होना एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर है। फिर उन फ्लावर से बाद में फ्रूट बनना, ये एक और यूनिक फीचर है। एंजियोस्पर्म से पहले हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, एंड स्पर्म मीन्स सीड। दे ऑल्सो प्रोड्यूस सीड, बट देयर सीड्स आर नेकेड, एक्सपोज्ड, ओपन। While angiosperm, angio means hidden, sperm means seed. उनके जो seed है वो hidden है, covered seed है, and they are covered inside the fruit. Angiosperm के seed आपको डायरेक्ट बाहर नहीं दिखेंगे, उनके चारों ओर एक fruit की layer covering होती है। So today we are going to discuss this fruit part of the plants, angiosperm plants. As such, हम सभी जानते हैं कि fruits हमारे लिए बहुत useful part भी है। बहुत सारे fruits हैं plant के जो हम खाते भी हैं, they are edible. And there are variety of fruits are there. Fundamental structure of fruit is quite simple, but there are many different types. And when we make a classification of fruits, so this will be quite complicated. But in our syllabus, in our NCERT, there are not so much type given. NCERT में हमारे पास में इतने कोई type नहीं है। बहुत simple base पर उन्होंने fruit का structure और कुछ fundamental type समझाए हैं। हालांकि हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जो बेसिक ज़रूरी फ्रूट्स हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं, उन पर ज़रूर बात करेंगे। उनमें से कई चीज़ें एग्जाम में आई भी हैं, ऑल्दो इट मे नॉट बी मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रूट्स में टाइप बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो असेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं, जो पूछे गए हैं, उनकी बात ज़रूर करेंगे। ठीक है। So what is fruit and what are the various types of fruit? Let us start with this topic. Fruit, जो मैंने कहा था एंजियोस्पर्म का, it is an special structure. एंजियोस्पर्म का ये बहुत ही special structure produced by angiosperm only. Flower and fruit produced by angiosperm only. ठीक है। Fertilized and ripened ovary, जो ovary मैंने कार्पल का जो पार्ट बताया था, when it get fertilized and it get ripened, then fertilized and ripened ovary is called fruit. ठीक है। So ovary get transformed into fruit after fertilization and ripening. A fruit consists of, जैसे हमने क्या कहा था, ovary से बना है, ovary wall become fruit wall and ovule become seed. ये मैंने fruit के टाइम भी बताया था। A fruit consists of first part pericarp. ठीक है, fruit wall. Carp word is for fruit, ध्यान रखिएगा। ये carp जो होता है ये fruit के लिए आता है। पेरी मीन्स सराउंडिंग, फ्रूट की सराउंडिंग जो वॉल है, पेरिकार्प, फ्रूट वॉल, एंड अनदर पार्ट इज सीड। सो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, पेरिकार्प, फ्रूट वॉल एंड अ सीड। ओके, ठीक है। यूजुअली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल मीन्स पेरिकार्प। ओवरी वॉल इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स, और ओव्यूल जो होता है वो सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। If a fruit is formed, कभी कभी क्या होता है, लेकिन देखो प्लांट के अंदर ये चीज़ आप प्लांट के रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। Sometime it happens कि there is no fertilization and fertilization fails. फ्लावर तो बहुत सारे लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, पॉलिनेशन नहीं होता, पॉलिनेशन हो जाता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। वैसे यूजुअली मैक्सिमम केस में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फ्लावर और वो ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती।
बट समटाइम देर आर सम प्लांट्स एंड देयर फ्रूट्स जो कि फर्टिलाइजेशन चाहे न भी हो तो भी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। बट एक चीज ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर ओव्यूल कभी सीड नहीं बनेगा, ये गारंटी। लेकिन ओवरी वॉल कैन कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल। सो व्हाट हैपन, कभी कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा, लेकिन ओवरी फ्रूट में फिर भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या हुआ, वो फ्रूट तो बना बट अंदर सीड नहीं है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ठीक है, और वो फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहे जाएंगे। और कॉमन सेंस की बात है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज और ध्यान रखिएगा, इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है व्हेन फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर्स, ओव्यूल नेवर कन्वर्ट्स इनटू सीड, ओव्यूल कभी सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर ऑलवेज सीडलेस, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमेशा क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स और बनाना आर गुड एग्जांपल। बनाना ग्रेप्स जो होते हैं आप देखो, इनमें आप जब खाते हो तो कोई सीड नहीं मिलता, ये पार्थेनोकार्पिक है। ठीक है, ओवरी गेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट बट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल कैन नॉट ट्रांसफर इनटू सीड, तो सीडलेस फ्रूट बनते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये तो एक स्पेशल केस है। मैक्सिमम केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ही ओवरी फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होगी, तो दे आर फ्रूट्स आर सीडेड फ्रूट्स। ओके, ठीक है, पेरिकार्प के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। जो फ्रूट वाले, फ्रूट का जो मेन पार्ट है वो पेरिकार्प है। अच्छा, अलग अलग प्लांट के फ्रूट में ईडेबल पार्ट अलग अलग हो सकता है। कुछ ऐसे फ्रूट है जिसका हम पेरिकार्प के अंदर भी 3 लेयर और हैं, हम कौन सा पार्ट ईट करेंगे खाएंगे वो अलग अलग। जैसे देखिए, पेरिकार्प फ्रूट वॉल में भी थिक और फ्लैशी। देयर आर मेनी प्लांट्स जिनकी फ्रूट वॉल बहुत थिक और फ्लैशी होती। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी फ्रूट वॉल थिक तो है लेकिन फ्लैशी नहीं, ड्राई है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी फ्रूट वॉल बहुत थिन होती है। अच्छा, ये ध्यान रखना, हर प्लांट का फ्रूट ईडेबल नहीं होता। ठीक है, फ्रूट तो हर प्लांट बनाता है लेकिन हर प्लांट का फ्रूट ईडेबल नहीं होता, कुछ का होता है तो कुछ का नहीं होता। तो पेरिकार्प में भी थिक और फ्लैशी, में भी थिक और हार्ड, और थिन एंड सॉफ्ट, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, एंड दिस पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। इस पेरिकार्प की फिर से 3 लेयर होती है, इपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, फ्रूट वॉल जो होती है पूरी वॉल को हम कहेंगे पेरिकार्प। सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो इपीकार्प, सबसे अंदर की जो कवरिंग होगी इनर मोस्ट दैट इज एंडोकार्प, एंड इपीकार्प और एंडोकार्प के बीच का जो पार्ट होता है जो अक्सर फ्लैशी होता है वो है मीजोकार्प। ठीक है, इपीकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर, मीजोकार्प इज द मिडिल लेयर एंड इट इज द इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्प। नाउ it depends on the type of fruit that which layer is edible। और अलग अलग तरह के फ्रूट में ये कंडीशन अलग अलग। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें उनके तीनों लेयर इडेबल है, इपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों खा सकते हो। कुछ ऐसे फ्रूट है जिसमें से एक भी लेयर इडेबल नहीं है। कुछ फ्रूट तो ऐसे होते हैं जिसमें ये पेरिकार्प इडेबल ही नहीं होती, सूखा होता है और हम सीड खाते हैं, फ्रूट में कुछ नहीं है। तो ऑल द 3 लेयर में बी अनइडेबल, ऑल द 3 लेयर में बी इडेबल। कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिसमें इपीकार्प इडेबल नहीं है, मीजोकार्प, एंडोकार्प इडेबल है। तो किसी में केवल मीजोकार्प इडेबल है, किसी में सिर्फ एंडोकार्प। तो ये वेरिएबल है, अलग अलग फ्रूट में इडेबल पार्ट अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए हम कॉमन कंक्लूजन कुछ नहीं दे सकते। हाँ, ये 3 लेयर्स होती हैं फ्रूट वॉल की, ये 3 लेयर्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब किस में क्या इडेबल है वो डिपेंड करेगा फ्रूट कौन सा है। नाउ फ्रूट में हम एक चीज और ध्यान रखें, हम कई बार 2 टर्म सुनेंगे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। लेट मी एक्सप्लेन इनमें क्या डिफरेंस। जब हम एक ओवरी से प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के बाद जब फ्रूट बनाते हैं तो वो है ट्रू फ्रूट। ओवरी से बना हुआ फ्रूट क्या रहेगा, ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर फ्रूट फ्लावर के किसी और पार्ट से बने, जो फ्रूट का एडिबल पार्ट है वो ओवरी को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लांट से बने, दूसरे पार्ट से बने, तो फिर वो फॉल्स फ्रूट होता है। ओवरी से बना हुआ फ्रूट ही ओरिजिनल और ट्रू फ्रूट होता है। तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट की डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, व्हेन द फ्रूट इज डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी,
ये ध्यान रखना, ओनली फ्रॉम द ओवरी इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। जैसे आपका मैंगो है, कोकोनट है, देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं, ज्यादातर फ्रूट ट्रू फ्रूट है, ओवरी से जो बनते हैं वो ट्रू फ्रूट, ठीक है। बट व्हाट आर फॉल्स फ्रूट और सूडो कार्प? अगेन कार्प मीन्स फ्रूट, सूडो मीन्स फॉल्स। सूडो कार्प या फॉल्स फ्रूट, इन सम प्लांट इन प्लेस ऑफ ओवरी some other parts of flower like thalamus, inflorescence, calyx are modified into fruit. फ्लावर के कुछ और पार्ट, थैलेमस, कभी कभी पूरा इन्फ्लोरेसेंस, इवन कैलेक्स, ये कुछ मॉडिफाइड होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। These type of fruits are called false fruit and a good example is apple and pear. एप्पल जो होता है, आप जो एप्पल खाते हो, आप देखिए एप्पल कट कीजिएगा तो बीच में आपको सीड मिले, थोड़ा सा वो पार्ट हार्ड होता है, दैट इज एक्चुअली ओवरी पार्ट। और जो साइड में जो फ्लैशी पार्ट होता है वो तो उसका थैलेमस है। एप्पल के केस में फ्लावर का थैलेमस बहुत एनलार्ज होकर के फ्लैशी हो जाता है और वो सीड को कवर कर लेता है। तो हम जो एप्पल में खाते हैं वो तो थैलेमस है, वो थैलेमस से बना है। ऐसे पियर में भी, ठीक है। तो एप्पल, पियर ये फॉल्स फ्रूट होते हैं, इनमें थैलेमस ही डबल, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। सो व्हेन फ्रूट इज बीइंग डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी ओनली इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। When fruit is developed from any part of the flower other than ovary, it is called false fruit. And a very good example of false fruit is apple and pear developing from thalamus. समझ गए? तो ये तो मैंने फ्रूट की जनरल चीज बताई है। फ्रूट में ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक फ्रूट वॉल है और अंदर सीड है। सीड एक भी सिंगल सीड हो सकते हैं, मल्टी सीडेड भी हो सकता है। फ्रूट वॉल जो है थिक एंड फ्लैशी, दे मे बी थिक एंड हार्ड और दे मे बी थिन एंड सॉफ्ट, ठीक है। व्हेन इट इज थिन it is not differentiated furthermore, but when it is thick and fleshy, in that case you can have the three different layer, epicarp, mesocarp and endocarp, ठीक है। ये तो आपके फ्रूट की जनरल बातचीत हुई, पहले तो ये पता होना चाहिए। Now we come to the various types of fruit, and again I am saying I am not going to explain all the types, right, क्योंकि अब इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। We will study here some main important types। वो भी हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं है, पर जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कम से कम इतना आपको फ्रूट के बारे में ध्यान होना चाहिए। ये कई बार इनडायरेक्टली दूसरे टॉपिक्स के साथ भी आ जाते हैं। सो लेट अस टेक टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करें, फ्रूट को हम ब्रॉडली 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वी कैन डिवाइड द फ्रूट्स इनटू 3 टाइप्स, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट। हमारा बेस क्या है, देखो इसमें जब फ्रूट सिंगल फ्लावर से बनता है और उस सिंगल फ्लावर में भी सिंगल कार्पल, सिंगल ओवरी से, ठीक है, तो वो होता है सिंपल फ्रूट। सिंपल इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्रूट। इट इज एक्चुअली डेवलपिंग फ्रॉम, इट डेवलप फ्रॉम सिंगल कार्पल और सिंगल ओवरी, यू कैन से सिंगल कार्पल ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के एक सिंगल कार्पल से बनने वाला फ्रूट क्या है, सिंगल ओवरी कह सकते हो, ज़्यादा बेटर। हम कार्पल में आपको कंफ्यूजन रहेगा तो एक काम करिए, सिंगल ओवरी कर दीजिए, सिंगल ओवरी ऑफ अ फ्लावर। ये सिंपलेस्ट फ्रूट होता है, जो फ्लावर की एक सिंगल ओवरी होती है गायनेशियम की, उससे एक फ्रूट बनता है। एग्रीगेट फ्रूट ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द सिंगल फ्लावर, बट देयर आर मेनी ओवरी। इट डेवलप फ्रॉम many ovaries of a flower। फ्लावर एक ही रहेगा, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर कार्पल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब थोड़ा आपको फ्लावर पर वापस जाना पड़ेगा। गायनेशियम में हमने कहा था, गायनेशियम में भी मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, और जब मल्टी कार्पिलरी होता है तो इट में बी फ्री एपोकार्पस और इट में बी फ्यूज्ड सिंकार्पस, याद है, ठीक है। व्हेन अ फ्लावर हैव अ सिंगल कार्पल तो दैट विल बी सिंगल ओवरी, उससे अगर फ्रूट बनेगा तो सिंपल ही है। व्हेन अ कार्पल हैविंग मेनी, व्हेन अ फ्लावर हैविंग गायनेशियम हैविंग मेनी कार्पल बट दे आर फ्यूज्ड, अगर वो फ्यूज्ड हो गए तो भी एक सिंगल ओवरी बन जाती, ठीक है, तो भी वो फ्लावर कौन सा होगा, सिंपल फ्लावर, सिंपल फ्रूट, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, एपो मीन्स फ्री, तो एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल हैं लेकिन फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, और हर कार्पल की ओवरी से एक छोटा सा फ्रूट बन जाए, तो फ्लावर एक ही है। फ्लावर के अंदर, गायनेशियम के अंदर कार्पल बहुत सारे और सब अलग अलग है, फ्री हैं, एपोकार्पस। तो ऐसे में हर कार्पल की ओवरी से एक छोटा सा फ्रूट बनता है। समटाइम दे आर कॉल्ड फ्रूटलेट्स।
और ये सारा फ्रूटलेट्स का जो बंच होता है उसको कहेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स। ठीक है, तो ये एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं। जो फ्लावर एक ही है लेकिन कार्पल बहुत सारा होने की वजह से, उनकी बहुत सारी ओवरी की वजह से छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप में बंच में फ्रूट बनता है। आप देखो कई बार फ्रूट में बंच आता है। और अगर कार्पल एक है तो उससे सिंपल फ्रूट बनेगा, कार्पल बहुत सारे हैं लेकिन फ्यूज्ड है तो भी सिंपल फ्रूट बनेगा। तो ये तो वो दो हुए। नाउ कंपोजिट फ्रूट जो है, दिस इज द फ्रूट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। ये पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है, एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। इसलिए कई बार इसको हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर छोटे 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 छोटे, और सबके फ्रूट फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा फ्रूट बन जाता है। इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाला कंपोजिट फ्रूट कहलाएगा। तो पहले तो आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंगल ओवरी से बनने वाला फ्रूट सिंपल फ्रूट। ठीक है, इन दैट केस फ्लावर में है वो सिंगल कार्पल और इट में है मेनी कार्पल बट दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, व्हेन fruits are developed from single flower but many carpels and they are free, multicarpellary apocarpus. So many small fruits develop in bunch, that is called aggregate fruits. And when a fruit develops entirely from entire inflorescence, it is called composite fruit. तो पहले तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल फ्रूट की। सबसे ज़्यादा वैरायटी हमें सिंपल फ्रूट में मिलेगी। ठीक है, सिंपल फ्रूट develops from single ovary of flower, as I told you. Now they can further divided into two types. अब देखो सिंपल फ्रूट में भी आगे फर्दर दो टाइप है। हमने देखा है कि इन सिंपल फ्रूट की जो फ्रूट वॉल है पेरिकार्प, इसमें देखा गया कि कई सारे फ्रूट है जिनमें पेरिकार्प बड़ी फ्लैशी है, ठीक है, और ईडेबल, और कई सारे ऐसे फ्रूट है जिनमें पेरिकार्प बिल्कुल ड्राई है। तो हम इसी तरह दो कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट हम जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो अलग चीज है, ये बॉटनिकल बात चल रही है। फ्लैशी फ्रूट वो है जिनके पेरिकार्प फ्लैशी है, जैसे मैंगो वगैरह आप देखते हैं। ठीक है, और ड्राई वो जिनमें फ्रूट वॉल फ्लैशी नहीं है। ऐसे केस में हम फ्रूट वॉल ईडेबल नहीं होती, जो ड्राई वाली है उसमें हम सीड खाते हैं। और जिन फ्रूट्स में फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उनमें पेरिकार्प फ्लैशी होती है, तो उनमें ज्यादातर केस में हम पेरिकार्प या फ्रूट वॉल खाते हैं। ठीक है, सो दे मे बी ऑफ टू टाइप्स, fleshy simple fruits and dry simple fruits. Is it clear? अब हम इन दोनों के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लें, और हमें तो फ्लैशी फ्रूट का एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, एक ही टाइप सिंपली। सो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लैशी सिंपल फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट को हमने पेरिकार्प के नेचर के बेस पर टू टाइप में डिवाइड किया, फ्लैशी पेरिकार्प, ड्राई पेरिकार्प, मींस फ्लैशी सिंपल फ्रूट, ड्राई सिंपल फ्रूट, राइट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स की। फ्लैशी सिंपल फ्रूट, पेरिकार्प पल्पी, जूसी, इडेबल, डिफरेंशिएटेड इनटू इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, मैंने ये बताया पेरिकार्प जो फ्रूट वॉल है वो फ्लैशी है, जूसी है, इडेबल होती है, और इसको इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख लें, फिर भी मैंने कम से कम 5-7 तरह के तो ये नाम लिख रखे हैं। ये बहुत कॉमन रूटीन डेली में यूज होने वाले फ्रूट हैं, और हमें बॉटनिकल टाइप भी पता होना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं 2-4 बार आप रीड करोगे तो ये याद हो जाएंगे। देयर आर मेनी टाइप्स। सबसे पहले है ड्रूप। अब ये जो है ये बॉटनिकल नेम है, थोड़ा साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखिए। ड्रूप, ड्रूप एग्जाम्पल में अगर आप बात करें, मैंने ब्रैकेट में इनके एग्जाम्पल लिख रखा है। कॉमन फ्रूट जो है, जो मैंगो और कोकोनट है, दोनों एक ही टाइप के फ्रूट है। नाउ आप कहेंगे कि मैंगो कैसा और कोकोनट कैसा, ये एक टाइप, दोनों ड्रूप होते हैं। ड्रूप किस तरह का फ्रूट है, मैं देखो इनके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ड्रूप किस तरह का होता है। ड्रूप जो होता है उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, इपिकार्प बड़ा थिक होता है और यूजुअली इडेबल नहीं होता है। ठीक है, मीजोकार्प फ्लैशी होता है, इडेबल भी होता है, और एंडोकार्प बड़ा हार्ड और स्टोनी होता है, बिल्कुल हार्ड, और वो भी इडेबल नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर केस में मेसोकार्प इडेबल होता है, नहीं तो फिर सीड का पार्ट भी इडेबल हो सकता है। अब जैसे मैंगो अगर आप देखें तो मैंगो, अब मैं ड्रूप तो आपको अलग से भी बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो मैंगो में जो बाहर का छिलका होता है वो इपिकार्प है, जो बीच का फ्लैशी पार्ट है जो हम खाते हैं वो है मीजोकार्प। तो हम क्या इडेबल है इसमें, मैंगो में मीजोकार्प। फिर अंदर ही अंदर आप देखोगे जब आम की गुठली होती है बीज, उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, वो है एंडोकार्प। ठीक है,
तो हम एंडोकार्ब भी नहीं खा रहे, इपिकार्ब भी नहीं खा रहे, हम मीजोकार्ब खा रहे हैं। ठीक है। कोकोनट का केस थोड़ा अलग है। कोकोनट आपने तो नारियल सूखा देखा होगा ना, हम वो जो कोकोनट वाटर वाला जो ग्रीन नारियल है, पहले उसकी बात करें तो उसमें जो ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग है दैट इज इपिकार्ब। फिर अंदर जो व्हाइट कलर का पार्ट है, जब आप ग्रीन को हटाते हैं तो अंदर व्हाइट पार्ट आता है, दैट इज मीजोकार्ब एंड इट इज वेरी मच फाइबरस। और सबसे अंदर जो हार्ड कवरिंग है वो एंडोकार्ब है। और कोकोनट में तो ना हम इपिकार्ब खाते हैं, ना मीजोकार्ब खाते हैं, ना एंडोकार्ब। इस एंडोकार्ब के अंदर आप जो नारियल खाते हैं, कोकोनट वाटर, वो तो एम्ब्रियो का, सीड का पार्ट है। ठीक है। एंडोस्पर्म है वो लिक्विड वाटर, उसका एंडोस्पर्म है, हम तो वो खाते हैं। तो कोकोनट में तो फ्रूट वॉल इडेबल ही नहीं। और जब ये कोकोनट ड्राई हो जाता है तो आप देखो इपिकार्ब जो थी बाहर की ग्रीन, वो तो खत्म हो जाती है। और आप देखो जो सूखा नारियल होता है उसमें बहुत सारे कॉयर जिसको कहते हैं, फाइबर होते हैं, ये मीजोकार्ब में से निकले हुए हैं, वो ड्राई होकर के फाइबरस हो जाता है। ठीक है। और फिर आप जब उसको छीलते हो तो अंदर बड़ी हार्ड कवरिंग आती है, वो एंडोकार्ब। और जब आप उसको तोड़ते हो तो अंदर जो व्हाइट मटेरियल या जो लिक्विड वाटर है वो एक्चुअली सीड का पार्ट है, एंडोस्पर्म है एक्चुअली, हम उसमें एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है। वहाँ हम फ्रूट की कोई लेयर नहीं खा रहे हैं। कोकोनट भी ड्रूप ही है। ठीक है। जिसमें हार्ड स्टोनी एंडोकार्ब होती है और एक टफ इपिकार्ब होती है और मीजोकार्ब फ्लेशी होती है। ठीक है। ड्रूप का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, मैंगो और कोकोनट ना। उसके बाद में है बेरी, अनदर वेरी कॉमन टाइप। बेरी जो है इसमें भी एक टफ इपिकार्ब होती है, लेकिन मीजोकार्ब और एंडोकार्ब बड़ी सॉफ्ट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो तीनों लेयर इडेबल है, नहीं तो इपिकार्ब, नहीं तो मीजोकार्ब, एंडोकार्ब तो इडेबल ही। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टोमेटो एंड ब्रिंजल, दोनों आपने देखे। तो टोमेटो में जो रेड कलर या ब्रिंजल में जो आउटर कवरिंग है वो तो इपिकार्ब है, उसको काटोगे तो अंदर आपको सॉफ्ट मीजोकार्ब, और एंडोकार्ब तो बिल्कुल नेग्लिजिबल सा होता है। फिर उसके अंदर जूस भरा होता है टोमेटो में और उसमें सीड होते हैं, तो पूरा वो तो इडेबल होता है एक तरह से। ठीक है। इनको बेरी कहते हैं। ये मल्टी सीडेड होते हैं। ड्रूप ध्यान रखिएगा, ये सिंगल सीडेड होते हैं, ये सिंगल सीडेड है। ठीक है। और ये मल्टी सीडेड होते हैं। तो मार्जिनल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो नंबर ऑफ सीड का, ड्रूप सिंगल सीडेड होते हैं, ये मल्टी सीडेड होते हैं। और ड्रूप के अंदर यूजुअली मीजोकार्ब इडेबल है, नहीं तो हो सकता वो भी इडेबल नहीं हो। जबकि बेरी के अंदर तीनों ही लेयर इडेबल हो सकती है, और नहीं तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा इपिकार्ब नहीं खाएंगे, मीजोकार्ब एंडोकार्ब इडेबल होती है। ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, हेस्पेरिडियम। थोड़े नाम अलग अलग हैं, थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम जो होता है, आपको इसको समझना है तो आप लेमन ले लीजिए, लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी जो भी हैं ये सारे एक जैसे हैं। सिट्रस फ्रूट, इसमें क्या होता है, इपिकार्ब बड़ी टफ एंड लेदरी हो जाती है। जैसे नींबू में आप देखो बाहर का जो येलो कलर का या ऑरेंज का, ऑरेंज के अंदर भी आप देखो जो है ना, ये बाहर की जो कवरिंग है इपिकार्ब है, ये बड़ी टफ होती है और लेदर टाइप की, लेदरी होती है। ठीक है। फिर आप जब उसको कट करते हैं तो उसके अंदर मीजोकार्ब जो होता है बहुत रिड्यूस होता है, वो इपिकार्ब के साथ ही चिपका रहता है जब आप नींबू को छीलिए जरा। ठीक है। और एंडोकार्ब भी आप देखिए थिन लेयर के फॉर्म में होता है, बीच बीच में कभी आप कहोगे उसमें हमें जूसी जो हेयर्स मिलते हैं, जो जूसी हेयर्स, वो एंडोकार्ब के हैं। तो एंडोकार्ब में वो जूसी हेयर्स है, वो हम खाते हैं, इडेबल हैं। इस तरह का जो फ्रूट है सिट्रस फ्रूट में, उसको हेस्पेरिडियम कहते हैं। लेमन, ऑरेंज, ये जितने भी हैं ये सब हेस्पेरिडियम होते हैं। ठीक है। इसमें ये जूसी हेयर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जूसी फाइबर्स होते हैं, जूसी हेयर्स, वो इडेबल होते हैं एंडोकार्ब के। ठीक है। देन कम टू द पीपो। पीपो मतलब सारे कुकुरबिट्स, जितने तरह के कुकुम्बर्स आते हैं, इवन आप जो बाकी वेजिटेबल है, आप जो ये कहते हैं बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड मतलब लौकी, करेला, और जितने तरह के कुकुम्बर्स हैं, ये सारे पीपो टाइप के फ्रूट हैं। इनमें क्या होता है, ये ट्राई कार्पेलरी ओवरी होती है, तो ये लंबे लंबे होते हैं। आउटर इपिकार्ब बड़ा टफ होता है, जैसे लौकी देख लो आप, बढ़िया एग्जांपल है लौकी, करेला, या और भी जो भी हैं ये जितने कुकुम्बर्स होते हैं। इनका मीजोकार्ब, एंडोकार्ब, अंदर की चीजें इडेबल होती है, और कई बार तो हम इपिकार्ब भी खा लेते हैं। ये पीपो टाइप के फ्रूट्स होते हैं जो कुकुरबिट्स हैं सारे। ठीक है। देन उसके बाद में एक बड़ा स्पेशल टाइप है बेलुस्टा। बेलुस्टा फ्रूट आपने पोमग्रेनेट देखा होगा, पोमग्रेनेट अनार। ठीक है। अब पोमग्रेनेट के अंदर आप देखिए इडेबल पार्ट क्या है, वहाँ फ्रूट की कोई लेयर इडेबल नहीं है। जो रेड कलर, पिंक कलर का जो आपको आउटर लेयर दिखता है वो इपिकार्ब है। ठीक है। उसी के साथ फ्यूज्ड होती है मीजोकार्ब भी, और एंडोकार्ब बिल्कुल थिन होती है। और आप देखो पूरा फ्रूट अच्छे खासे फ्लैशी सीड से भरा हुआ होता है। अनार में तो सीड होते हैं, और इसमें सीड का भी जो सीड कोट, आउटर कवरिंग होती है फ्लैशी, वो इडेबल होती है, सीड कोट इडेबल होता है।
और जो अनार का जो फ्रूट है दैट इज बेलुस्टा टाइप पोमग्रेनेट, इसके अंदर जो होते हैं ये जो होते हैं बेसिकली इसमें सीड कोट इडेबल होता है, सीड कोट इज इडेबल, ठीक है, सीड कोट इडेबल है। और बाकी हेस्पेडियम में इनमें ज्यादातर केस में मेसोकार्प एंडोकार्प इडेबल है, ईपीकार्प भी कई बार हम यूज कर लेते हैं, इडेबल हो सकता है। तो बेलुस्टा ध्यान रखिएगा, पोमग्रेनेट जो है बेलुस्टा और उसमें फ्रूट लेयर नहीं, उसमें सीड का सीड कोट जो होता है टेस्टा, सीड कोट हम सीड में बताएंगे ये चीज, वो इडेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पोम, पोम एंड वेरी गुड एग्जांपल इज एप्पल। एप्पल इज अ पोम टाइप ऑफ फ्रूट एंड दिस इज नॉट द ट्रू फ्रूट, इट इज फॉल्स फ्रूट। जो मैंने बताया थैलेमस गेट एनलार्ज एंड कवर द सीड्स, तो ये थैलेमस से बनता है, इसको पोम टाइप का फ्रूट कहते हैं। और यहां पर जो है ये फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, थैलेमस इडेबल होता है, इसमें इडेबल पार्ट इज थैलेमस, ठीक है। एंड वन मोर इज देयर एम्फीसार्का, ये आपको कमी देखने को मिलेगा। एम्फीसार्का वुड एप्पल या बिल क्यों कहते हैं, वुड एप्पल, कुछ लोगों ने हो सकता है देखा हो बिल, ठीक है, जैसे कई बार हम बिल पत्र कहते हैं, जो कई बार हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव के बिल पत्र चढ़ाए जाते हैं, वो जो बिल पत्र होते हैं वो तो लीफ है उसकी, उस पेड़ का जो फ्रूट होता है उसको बिल का फ्रूट कहते हैं, इसके जूस भी बनता है, ये एडिबल होता है और बड़े हार्ड होते हैं, बड़े बड़े, और आउटर स्टोनी वुडी इपिकार्प। इसके अंदर क्या होता है एम्फीसार्का में, इपिकार्प एडिबल नहीं है, वो वुडी होती है, बिल्कुल हार्ड वुड जैसा होता है। फिर हम उसको कट करते हैं, बड़ी मुश्किल से टूटता है ये, फिर अंदर ये सॉफ्ट होता है, जिसका जो इंटरनल पार्ट है, इसके प्लेसेंटा वगैरह, इसका जो एंडोकार्प प्लेसेंटा, ये सब इडेबल होता है, ये वुड एप्पल कहलाता है। बिल का जो फ्रूट होता है उसको वो कहलाता है एम्फीसार्का, इसमें वुडी इपिकार्प होता है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है। इवन देयर आर मेनी मोर टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स, बट आई हैव सेलेक्टेड दीज 7 टाइप्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम डेली रूटीन में भी यूज करते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। और इसमें से एनसीईआरटी ने सिर्फ ड्रूप एक्सप्लेन किया है, वो अभी हम अलग से भी देख लेते हैं। तो हमने फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लिए हैं। ड्रूप, इनके एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, ड्रूप किसमें, मैंगो, कोकोनट, ठीक है, इसमें सिंगल सीड होता है और ज्यादातर केस में मेसोकार्प इडेबल है या फिर सीड इडेबल होगा। देन उसके बाद बेरी, टोमेटो, ब्रिंजल की तरह, जिसमें लगभग तीनों लेयर इडेबल है, ठीक है, और ये मल्टीसीडेड होता है। हेस्पेडियम में लेदर लाइक आउटर इपिकार्प होता है, बाकी मेसोकार्प भी इडेबल नहीं है, इनमें ज्यादातर केस में जूसी हेयर्स ऑफ एंडोकार्प आर इडेबल, ठीक है। सिट्रस फ्रूट, पीपो जो है, कुकुरबिट्स हैं सारे के सारे, ये ज्यादातर वेजिटेबल्स होती हैं और इनमें भी हम इपिकार्प को छोड़कर बाकी चीजें खा सकते हैं, ठीक है। बेलुस्टा, पोमग्रेनेट इज अ गुड एग्जांपल एंड हियर नो fruit wall is being edible, here the seed coat is being edible, जो fleshy होते हैं। then pom is a false fruit, thalamus से बना हुआ fruit है। apple is the good example and amphisarca ये होता है wood apple bill, जिसके अंदर की बेसिकली woody epicarp होता है और अंदर ये soft part रहता है जो edible होता है, ठीक है। तो ड्रूप, बेरी, हेस्पेडियम, पीपो, बेलुस्टा, पोम एंड एम्फीसार्का, these are the different types of simple fleshy fruits। now इसमें हम ड्रूप की बात थोड़ी सी और कर ले, ये एनसीईआरटी का एक कंटेंट है, ड्रूप फ्रूट उन्होंने समझा है, इसलिए इस पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ड्रूप जो होता है, ड्रूप जो है इट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनो और मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड, ठीक है। या तो मोनो कार्पलरी, सिंगल कार्पल है, उसका सिंगल ओवरी है, उसी से बन जाएगा, और अगर बहुत सारे कार्पल है तो वो फ्यूज होने चाहिए, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस, मल्टी कार्पल मेनी कार्पस और सिन मींस फ्यूजन, सिनकार्पस ओवरी, और ये वन सीडेड होते हैं। इन दिस फ्रूट एंडोकार्प, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, एंडोकार्प बहुत हार्ड और स्टोनी होता है। मैंगो एंड कोकोनट आर द गुड एग्जांपल ऑफ ड्रूप फ्रूट, ये डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये मैंगो दिखा रखा है, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो इपिकार्प है, फिर ये बीच का फ्लैशी पार्ट मेसोकार्प और एक अंदर सीड है और सीड के बाहर ये एक एंडोकार्प होता है, ठीक है। कोकोनट के अंदर भी, ये तो खैर ड्राई कोकोनट दिखा रखा है तो इसमें इपिकार्प नहीं दिख रहा है, अगर आप ग्रीन वाला कोकोनट लेंगे तो उसमें इपिकार्प दिखता है। ये जो हेयर्स हैं, कॉयर जिसको हम कहते हैं, ये मेसोकार्प के हैं, और फिर जो एक हार्ड कवरिंग है वो एंडोकार्प और अंदर की तरफ सीड होता है, एंडोस्पर्म होता है, दोनों ही ड्रूप है सिंगल सीडेड, ठीक है। और मैंगो में इडेबल फ्लैशी पार्ट इज मेसोकार्प, मैंगो में इडेबल पार्ट कौन सा हुआ, फ्लैशी मेसोकार्प, ठीक है। इन कोकोनट इपिकार्प इज हार्ड एंड थिन
while mesocarp is thick and consists of hard fiber coir, ये बताया था। तो एपिकार्प भी यहाँ पर हार्ड होती है जो बाद में हट भी जाती है, मेसोकार्प में फाइबर्स होते हैं, कोयर बनता है इससे, ठीक है। एंडोकार्प इज ऑल्सो हार्ड एंड सीड इज प्रोटेक्टेड इन, और इस एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। एंडोस्पर्म इज इडेबल इन दिस कोकोनट, कोकोनट में एंडोस्पर्म, जो कोकोनट वाटर है वो एंडोस्पर्म वाटर है, जो बाद में वो भी सेटल डाउन हो जाता है, और हमें जो हम नारियल की गिरी खाते हैं वो बेसिकली कोकोनट का ही सॉलिड पार्ट होता है, सॉरी एंडोस्पर्म का सॉलिड पार्ट है। तो ये ड्रूप को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। अदरवाइज ड्रूप के अलावा भी कुछ सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स हैं, उनके नाम और वो किन किन में है एक एक दो दो एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो सिंपल फ्रूट का ये हमने पहला पार्ट लिया, फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द ड्राई सिंपल फ्रूट्स। अगला जो है ड्राई फ्रूट, और वो भी ड्राई सिंपल फ्रूट्स। अब इनमें क्या है, इनमें फ्रूट वॉल ड्राई होती है, तो इसमें फ्रूट की कोई फ्रूट लेयर जो इडेबल नहीं है। इन केसेस में ज़्यादातर केस में हम सीड इडेबल होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत वैरायटी है, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टिव यहाँ पर ली है, ठीक है। पेरिकार्प इज ड्राई, नॉट इडेबल एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। यहाँ एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प का डिफरेंशिएशन नहीं दिखता है, ये ड्राई है, ये इडेबल भी नहीं होती है। इनको हम 3 मेजर कैटेगरी में पहले तो डिवाइड करते हैं, 3 मेन टाइप्स, और फिर इनके और फर्दर टाइप्स होते हैं, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब इसमें देखिए क्या ये ड्राई होते हैं और 3 टाइप्स हैं। एक्चुअली इनमें क्या होता है, ये ऊपर ये बिल्कुल ड्राई फ्रूट होता है। हमने देखा है इसके अंदर जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं, तो कुछ तो इसमें ऐसे होते हैं जो मैच्योरिटी पर अपने आप ओपन हो जाते हैं, अपने आप ही खुल जाते हैं और सीड निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो जैसे वो मैच्योर होते हैं, सूखते हैं और खुद ही ओपन हो जाते हैं और सीड थ्रो कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ओपन ही नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े हो जाते हैं, वो ओपन नहीं होते बट उनके सीड बाई सीड वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक्चुअली ये 3 टाइप्स उसी बेस पर है, डिसेंट, इनडिसेंट एंड साइजोकार्प। डिसेंसी का मतलब होता है फटना, खुलना। तो डिसेंट जो होते हैं दे विल ओपन नेचुरली व्हेन दे गेट मैच्योर, जैसे ये मैच्योर होंगे, ड्राई होंगे, खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो जो डिसेंट शो करते हैं वो डिसेंट है, और इनडिसेंट दे नेवर ओपन, ठीक है। ये ड्राई भी हो जाएंगे, मैच्योर भी हो जाएंगे, लेकिन बंद ही रहेंगे हमेशा। और साइजोकार्प जो होता है इट विल नॉट ओपन, बट ये एक एक सीड के हिस्से में पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिंगल सीडेड पीस में ही डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, बट ये ओपन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो डिसेंट है इट विल ओपन नेचुरली, ये नेचुरली बाद में ओपन हो जाता है, इसलिए इसको डिसेंस, इसमें डिसेंट शो, डिसेंट मतलब खुलना, ठीक है। और इनडिसेंट जो होते हैं ये नेवर ओपन्स, ये कभी ओपन नहीं होते। और साइजोकार्प जो है, ठीक है, विल नॉट ओपन बट ब्रेक्स इनटू सिंगल सीडेड पार्ट्स, तो सिंगल सीड के पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। इसके कुछ फैमिलियर एग्जांपल मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ड्राई फ्रूट की 3 कैटेगरी होती है, और डिसेंट टाइप ऑफ फ्रूट जो अपने आप खुल जाते हैं, उनमें एक तो सबसे कॉमन एग्जांपल है लेग्यूम, ये नाम तो खैर कॉमन ही है, मटर की जो फली होती है, पी, ठीक है, लेग्यूम कहते हैं उसको। और आप देखो जब ये सूखता है तो ये अपने आप पूरा दोनों साइड से खुल जाता है, ऐसे खुलता है, यूँ खुल जाता है, सीड थ्रो हो जाते हैं। लेग्यूमिनस फैमिली जो है, फैबेसी, आगे डिस्कस करेंगे इसमें, वो दोनों तरफ से खुल के ओपन हो जाती है और सीड बाहर आ जाते हैं। लेग्यूम पी प्लांट का एग्जांपल है। और एक होता है फॉलिकल, ये भी लेग्यूम के जैसा ही है, बस लेग्यूम में और फॉलिकल में इतना डिफरेंस है कि लेग्यूम जो होता है वो दोनों तरफ से खुलता है, ठीक है, और फॉलिकल जो होता है वो एक साइड से खुलता है, एक साइड से जुड़ा रहेगा। ये ऐसे है, ये फली होती है, मटर की फली होती है, तो अगर वो दोनों तरफ से खुल रही है, इधर से और इधर से, तो वो लेग्यूम है, ठीक है। और अगर ये फली एक साइड से खुलती है तो फिर ये फॉलिकल है। तो ये जो डेल्फिनियम में मिलता है फॉलिकल, ये एक सिंगल साइड से ओपन होता है और ये बोथ साइड से ओपन होता है, बट ये ड्राई होने पर, मैच्योर होने पर अपने आप ओपन हो जाते हैं। ये डिसेंट टाइप का फ्रूट है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और भी होते हैं, इसमें टाइप्स खूब सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 कॉमन एग्जाम्पल दिए आपको, लेग्यूम एंड फॉलिकल, ध्यान रखिए, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, सिंगल साइड ओपनिंग और बोथ साइड ओपनिंग है। उसके बाद है इनडिसेंट, जो कभी ओपन नहीं होते, इनके फ्रूट कवरिंग हार्ड होती है और सीड अंदर ही रहता है। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो है एक एकीन,
एकिन जो होता है सिंगल सीडेड छोटा सा फ्रूट है। इसकी हार्ड फ्रूट वॉट होती है, हार्ड फ्रूट वॉल है पेरिकार्प, और अंदर एक सीड रहता है। आराम से ड्राई होने के बाद तो ये बचता भी है, लेकिन ये ओपन नहीं होता है। एकिन कहते हैं इसको। मिराबिलीज में मिलता है, हो सकता है आपने देखा हो, नहीं तो ये इडेबल नहीं है। हम इसका सीड भी नहीं खाते हैं ना फ्रूट खाते हैं, इडेबल पार्ट में नहीं आता। उसके बाद है सिप्सेला, ये भी सिंगल सीडेड है। एकिन भी सिंगल सीडेड है। एकिन जो होता है कुछ इस तरह का फ्रूट है, यूं समझिए ऐसे एक छोटा सा फ्रूट है और उसके अंदर ये एक सीड होता है ऐसे, ये एकिन होता है। सिप्सेला ये भी सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से बनता है और इसके अंदर भी ये एक सिंगल सीड होता है, दिस इज सिंगल सीड। बस सिप्सेला में क्या रहता है, यहाँ पर ऐसे ये हेयरी होते हैं, इसमें छोटे छोटे से हेयर होते हैं, इनको हम पेपस कहते हैं। ये पेपस हेयर्स हैं इसमें। एकिन में हेयर नहीं है और ये हेयरी होता है, सनफ्लावर के अंदर बनता है, जो कंपोजिटी फैमिली, जो कि एक एडवांस फैमिली मानी जाती है। सिप्सेला उसी में है। उसमें भी छोटा सा फ्रूट है जिसके अंदर एक सीड होता है और बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इस हेयर से ये उड़ता रहता है, इनको पेपस कहते हैं, ठीक है। और ये बिना हेयर का सिंगल सीडेड छोटा सा फ्रूट होता है, मिराबिलीज वगैरह में मिलता है एकिन। उसके बाद में है कैरियोप्सिस, दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड फ्रूट, ठीक है। कैरियोप्सिस जो होता है ये बहुत ही एडवांस्ड फ्रूट माना जाता है। इनफैक्ट इसके अंदर फ्रूट है यही पता नहीं चलता। ये सारा जो वीट है, राइस है, ठीक है, मेज है, जो भी ये ग्रास फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली मैंने आपको कहा था सबसे एडवांस होती है, ये सब कैरियोप्सिस होते हैं। जो आप गेहूं के दाने को देखिए, तो जो गेहूं का दाना हमें लगता है सीड है, इट इज नॉट सीड। ये जो सीड लग रहा है आपको, इसके ऊपर ये पेरिकार्प जो होता है, फ्रूट वॉल, ये बिल्कुल थिन हो जाती है और वो सीड कोट पर ही फ्यूज हो जाती है। तो हमें यहाँ फ्रूट वॉल अलग से नहीं दिखेगी। फ्रूट वॉल इज वेरी थिन and get fused with seed coat and entire fruit looks like a seed and that is caryopsis। तो जो wheat, rice, maize हैं, इनमें ये एक्चुअल में हमें ये दाने जो लगते हैं, हमें लगता है सीड है, एक्चुअली ये फ्रूट है, कैरियोप्सिस। बट इसमें फ्रूट वॉल आपको डिफरेंशिएट नहीं होगी। फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड विद सीड कोट एंड द एंटायर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए सीड, ये कैरियोप्सिस होता है, ठीक है। और ये सबसे एडवांस्ड और सबसे नए तरह का फ्रूट माना जाता है, ग्रेमिनी फैमिली, ग्रास फैमिली में होता है। और जितने सीरियल्स हैं वो सब कैरियोप्सिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है नट, ठीक है। अब नट्स तो बहुत कॉमन नेम है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स और नट्स हम कहते हैं। तो अब क्या, कई बार हम नट जो कहते हैं, हम तो कईयों को नट कहते हैं जो नट नहीं होते। एक्चुअली जो नट होता है उसमें क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग रहती है और अंदर एक सीड होता है और वो सीड इडेबल होता है। जैसे कैशू नट इज द एक्चुअल नट, ट्रू नट है, कैशू नट, वॉलनट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कोकोनट, कोकोनट इज नॉट ए नट, ग्राउंड नट इज नॉट ए नट, ठीक है। कैशू नट वगैरह ये जो होते हैं ये कभी ओपन नहीं होते हैं, हमें इनको तोड़ना पड़ता है। जैसे आप काजू खा रहे हैं तो हमारे पास तो खैर वो खुल के जाता है, नहीं तो आप अखरोट देखिए, बड़ी हार्ड कवरिंग है, आप उसको तोड़ोगे तब निकलेगा, ये खुद से ओपन नहीं होते। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इनडिसेंट फ्रूट जो खुद ओपन नहीं होते, ठीक है। तो ये नट होते हैं, कैशू नट और ये सारे जो हैं इसमें आएंगे नट्स। तो ये दो तो हो गए डिसेंट और इनडिसेंट। थर्ड जो कैटेगरी वो है साइजोकार्प। साइजोकार्प में फ्रूट ओपन नहीं होता, लेकिन मैच्योरिटी पर ये एक एक सीड के कंपार्टमेंट में ब्रेक हो जाता, ठीक है, सिंगल सीडेड कंपार्टमेंट। इसमें एक दो एग्जांपल ध्यान रखेंगे, और एक तो बड़ा फेमिलियर एग्जांपल है लोमेंटम, एंड दैट इज ग्राउंडनट, मूंगफली। ग्राउंडनट तो सबने देखी होगी। ग्राउंडनट में जो हार्ड कवरिंग है वो है उसका फ्रूट वॉल, अब वो तो इडेबल ही नहीं, अंदर फिर उसमें सीड होते हैं और सीड ही हम खाते हैं। ग्राउंडनट ये तो ठीक है, हम तो जल्दी निकाल लेते हैं और हम खुद ही ओपन करके खा रहे हैं। नेचुरली अगर देखें तो ग्राउंडनट बाद में क्या होता है, वो जो एक एक सीड का जो कंपार्टमेंट है उसमें टूट जाता है, लोमेंटम। एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं इस ग्राउंडनट के साथ साथ में, आपने देखा होगा टैमरिंड। अब टैमरिंड अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इमली तो जानते होंगे। टैमरिंड या इमली जो होती है वो और जो ग्राउंडनट है दोनों सेम टाइप के फ्रूट है, लोमेंटम। इमली में भी आप देखो एक एक सीड का कंपार्टमेंट बंद रहता है, उसमें जरूर हम जो उसकी फ्रूट वॉल है वो इडेबल होती है, उसके सीड इतने इडेबल नहीं होते। ये दोनों लोमेंटम होते हैं। और एक होता है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प भी पॉपुलर एग्जांपल है और हमारे लिए फेमिलियर है। अगर आपने कोरिएंडर देखा हो, अब लोगों ने कई बार तो धनिया तो अक्सर पाउडर के फॉर्म में देखते हैं, लेकिन अगर आपने साबुत धनिया देखा हो तो आप देखो जो ग्रीन कलर के जो उसके फ्रूट होता है क्रीमोकार्प होता है, और उसके अंदर धनिया की दाल होती है, दाल तरह का होता है।
और इसको पीसा जाता है तो कोरिएंडर पाउडर बन जाता है। ये क्रीमोकार्प टाइप का है जो 2 पार्ट में खुल जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। एग्जैक्टली ओपन तो होता ही नहीं है, 2 पार्ट में। ये एक फ्रूट इसका जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी जितने सीड होंगे उतने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। लोमेंटम इन क्रीमोकार्प इज द एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट। इंडिसेंट फ्रूट के एग्जाम्पल है एकिन, सिप्सेला, कैरियोप्सिस एंड नट्स, ठीक है। डिसेंट में लेग्यूम एंड फॉलिकल, ये सारे वो हैं जिनमें फ्रूट वॉल ड्राई होती है, इसलिए इनको ड्राई सिंपल फ्रूट कहते हैं। ये ओपन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट था ये थे सिंपल फ्रूट। इसको आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर ध्यान रखना चाहिए, और इसमें से बहुत सारे रोज के फैमिलियर एग्जाम्पल हैं, तो हम रोजाना थोड़ा सा रूटीनली भी इनको याद रखेंगे तो ये ध्यान हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल फ्रूट्स के बाद अगले पार्ट पर आते हैं। हमने 3 पार्ट किए थे। नेक्स्ट वन इज द एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स में मैंने क्या कहा था, ये एक ही फ्लावर से बनता है, लेकिन एक फ्लावर के अंदर कार्पल बहुत सारे हैं और सारे फ्री हैं, तो ओवरी बहुत सारी हो गई, तो हर ओवरी से एक छोटा फ्रूट बन जाता है, फ्रूटलेट्स, एंड देयर इज अ बंच ऑफ फ्रूटलेट्स, उसको एग्रीगेट कहते हैं। दे आर द ग्रुप और बंच, इसको ग्रीक में कहा जाता है इटेरियो, इटेरियो से ग्रीक वर्ड, ग्रुप या बंच को कहते हैं। और स्मॉल फ्रूटलेट्स, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स का पूरा बंच होता है जो एक ही फ्लावर की बहुत सारे कार्पल से बनता है, ठीक है। दे डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी मेनी कार्पल्स एपोकार्पस गाइनेशियम ऑफ ए सिंगल फ्लावर। एक ही फ्लावर में बहुत सारे कार्पल, लेकिन वो भी फ्री हैं, इसलिए हर ओवरी से छोटे छोटे फ्रूट्स बन जाते हैं और ये बंच में ही रहते हैं। इनमें से कई एग्जाम्पल तो आप जानते भी, ठीक है। अब आपको जो मैंने सिंपल फ्रूट बताए थे उन्हीं के ये छोटे छोटे बंच, वो तो एक एक इंडिविजुअल हैं। अब ये एग्रीगेट है इटेरियो ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल पढ़ा था अपन ने, लेग्यूम एंड फॉलिकल जो अभी बताया था ड्राई फ्रूट। अगर बहुत सारे फॉलिकल का ग्रुप आ जाए तो इटेरियो ऑफ फॉलिकल, ये कैलोट्रोपिस में मिलता है आंकड़े में, ठीक है। फॉलिकल का ग्रुप है, छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स, हर कार्पल हर ओवरी से बन जाते हैं। फ्लावर एक ही सिंगल फ्लावर से बनते हैं, ठीक है। इटेरियो ऑफ बेरीज, ग्रुप ऑफ बेरीज, इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल जानते हैं? नहीं तो सभी ने सीताफल देखा होगा। अब सीताफल आप जो जानते हैं उसको कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। उसमें आप देखो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, वो जो एक सिंगल यूनिट है वो एक स्मॉल फ्रूटलेट है जिसमें एक सीड होता है, ठीक है। इटेरियो ऑफ बेरीज कहते हैं, सीताफल होता है, और वो पूरा का पूरा जो है बहुत सारी कार्पल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में ड्रूप, ठीक है। इटेरियो ऑफ ड्रूप, बहुत सारे ड्रूप का ग्रुप होना। रेसबेरी जो होती है, रेसबेरी में वही है, इटेरियो ऑफ ड्रूप है, मेनी स्मॉल ड्रूप्स इन अ बंच, ठीक है। देन इटेरियो ऑफ एकीन, एकीन का इटेरियो ये लोटस में मिलता है, लोटस का भी इसी तरह का एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स आते हैं। तो ये सारे जो है ये एग्रीगेट फ्रूट्स हैं, जो छोटे छोटे कई सारे फ्रूटलेट्स का बंच होता है। और ये ध्यान रखना ये बनते किससे हैं, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनेशियम ऑफ ए सिंगल फ्लावर। ये मेन चीजें जो पूछी जाती है, बाकी तो ठीक है 2-4 एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये सेकंड टाइप है एग्रीगेट फ्रूट्स। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज कंपोजिट फ्रूट, जो थर्ड टाइप बताया था, जिसमें मैंने कहा था पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट बन जाता है, ठीक है। दे आर द फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम होल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, स्मॉल फ्रूट्स ऑफ फ्लावर्स गेट फ्यूज्ड एंड कंपोजिट फ्रूट फॉर्म्स। अब इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, हर फ्लावर का छोटा छोटा फ्रूट है, वो सब फ्यूज होकर के एक पूरा बड़ा फ्रूट नजर आता है, दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट, और यू कैन से कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस से बनता है कंपोजिट फ्रूट। कई लोग इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली सिंगल फ्लावर सिंगल ओवरी से नहीं है, ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। इसमें आपको 2 कॉमन टाइप ध्यान रखने, और अगर आप इन्फ्लोरेसेंस पहले पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2 नाम ध्यान रखेंगे, सोरोसिस एंड साइकोनस। सोरोसिस पूरा का इट इज डेवलप्स फ्रॉम एंटायर कैटकिन और स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। कैटकिन या स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, कैटकिन मैंने आपको बताया था शहतूत में, मेलबरी में, ठीक है। ऐसे स्पेडिक्स भी होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं और सबका फ्रूट फ्यूज हो जाता है। जो शहतूत आता है मार्केट में, आप देखो लंबे लंबे आते हैं इसकी बंच, ये बंच में आता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, सोरोसिस, जो कैटकिन और स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, सारे फ्रूट्स फ्यूज हो जाते हैं। और मेलबरी इज अ गुड एग्जांपल। पाइनएप्पल आप लोगों ने देखा, ये जैक फ्रूट देखा, ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में जो आपको कई सारी यूनिट्स नजर आती है, वो एक यूनिट जो है वो एक फ्रूट से बनी है, ठीक है। और ऐसे कई सारे फ्रूट का ये पूरा बंच है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो उससे बना। ऐसे जैक फ्रूट हम कहते हैं इसको, कटहल,
जैक फ्रूट के बारे में ध्यान रखना, इट इज द लार्जेस्ट फ्रूट, सबसे बड़ा फ्रूट इसी को माना जाता है जैक फ्रूट, ये तो बहुत बड़ा होता है। और आप इसको ध्यान से देखो, बहुत सारी यूनिट से फ्यूज होकर बना है, ऐसे पाइनएप्पल भी बहुत सारी यूनिट से फ्यूज होकर बना है, और मलबेरी भी, ये सब जो है कैटकिन या स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस का कंपोजिट फ्रूट है। और एक और है साइकोनस, आपको स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में एक बताया था हाइपेंथोडियम, ठीक है, मैंने कहा था जो फिग प्लांट होते हैं, फाइकस, पीपल, बरगद, अंजीर, इनमें हाइपेंथोडियम होता है, फ्लैशी रिसेप्टिकल, एक पोर होता है, अंदर फ्लावर है, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर, और अंदर इंसेक्ट जाता है, और इंसेक्ट भी अपनी एग लेइंग कर देता है, बाद में ये इंसेक्ट पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, और ये पूरा हाइपेंथोडियम बाद में फ्रूट बन जाता है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट बन जाता है। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जो फ्रूट बनता है वो साइकोनस होता है, ठीक है, डेवलप्स फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। और इसका तो खैर बढ़िया एग्जांपल है फिग। फिग में पीपल और बरगद के तो हम फ्रूट नहीं खाते, बट अंजीर तो सभी जानते हैं। अंजीर जो पूरा है वो हाइपेंथोडियम है, उसके स्लाइस कट करके हम यूज करते हैं, एडिबल होता है, ठीक है। तो सोरोसिस एंड साइकोनस, सोरोसिस फ्रॉम कैटकिन एंड स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस एंड साइकोनस फ्रॉम हाइपेंथोडियम, ठीक है। इनके एग्जांपल भी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, मलबेरी, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट जो है ये सब सोरोसिस हैं, और साइकोनस में आते हैं अंजीर जो फिग प्लांट के फ्रूट्स हैं उनसे। तो यहाँ पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? तो कुल मिलाकर सारे फ्रूट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट को जरूर हमने आगे डिवाइड किया है, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट। और फ्लैशी के अंदर फिर बहुत सारे हैं, ड्रूप, बेरी, हेस्प्रिडियम, वेलुस्टा, पीपो, जो एम्फिसार का, ये सारे। और फिर ड्राई हैं, ड्राई के अंदर डिसेंट टाइप भी हैं, इनडिसेंट टाइप भी और साइजोकार्प भी हैं। बाकी इसके अलावा एग्रीगेट फ्रूट में 3-4 बताया था आपको, एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल, इटेरी ऑफ फॉलिकल, इटेरी ऑफ ड्रूप, इटेरी ऑफ बेरीज, इटेरी ऑफ एकिन्स, है ना। और 2 तरह के ये कंपोजिट फ्रूट्स हैं, ठीक है। इनको एक चार्ट के फॉर्म में, वैसे मॉड्यूल में हमने इससे ज़्यादा टाइप भी दे रखे हैं, बट जो ज़रूरी है मैंने बेसिकली बताया, 2-4 एक्स्ट्रा टाइप हो सकते हैं। अब इसको आप देखो पूरा समराइज करते हैं चार्ट के फॉर्म में, ठीक है, इससे थोड़ा और इजीली हमें ध्यान रहेगा। आप देखो फ्रूट्स हैं, इनके 3 पार्ट हो गए, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपोजिट। थोड़ा छोटा लिखा हुआ ताकि पूरा आ सके इसमें, ठीक है। अब सिंपल फ्रूट्स, पहले इसी की बात करें। सिंपल फ्रूट्स देखिए, सकुलेंट, सकुलेंट का मतलब क्या होता है, फ्लैशी, फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स, और ये ड्राई सिंपल फ्रूट्स। अब फ्लैशी में मैंने आपको ये टाइप बताए थे, ड्रूप, एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, मैंगो, कोकोनट, आलमंड, ये सारे ये ड्रूप होते हैं, ठीक है। ऐसे बेरी, बेरी में ये टोमेटो, ब्रिंजल के अलावा पोटैटो, बनाना, ग्रेप्स, ये सब बेरी में आते हैं, ठीक है। देन पोम, पोम क्या था, एप्पल और पियर, फॉल्स फ्रूट भी है ये। उसके बाद पीपो जिसमें कोकोरबिट्स हैं, फिर उसके बाद हेस्प्रिडियम जिसमें सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। फिर बेलुस्टा जिसमें कि पोमग्रेनेट, अनार, और एम्फिसार्का जिसमें कि वुड एप्पल आता है, इसको एलिफेंट एप्पल, वुड एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। यही आपको मैंने 5-7 टाइप बताए थे फ्लैशी में। फिर ड्राई, ड्राई के अंदर इनडिसेंट, डिसेंट एंड साइजोकार्पिक। इनडिसेंट जो ओपन नहीं होते, उसमें एक था एकीन, मिराबिलिस का एक एग्जांपल बताया था। फिर सिप्सेला सनफ्लावर में, कैरियोप्सिस वीट और राइस, और नट्स, नट्स के अंदर कैशू नट, लीची वगैरह ये नट में आते हैं, लीची भी नट में आता है, ठीक है। हम जो रूटीन लैंग्वेज में नट बोलते हैं वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। इनडिसेंट, डिसेंट के अंदर मैंने आपको 2 बताए थे, लेग्यूम एंड फॉलिकल। इसमें और भी टाइप होते हैं, लेकिन आप ये 2 तो ध्यान रखें कम से कम। और साइजोकार्पिक में लोमेंटम, टेमेरेंडिस और ग्राउंडनट, और क्रीमोकार्प जो कोरिएंडर है, धनिया, और क्यूमिनम, क्यूमिनम कहते हैं हम जीरा को, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ड्राई सिंपल फ्रूट्स हैं, इनडिसेंट, डिसेंट एंड साइजोकार्पिक, और ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल फ्रूट हुए, यही पढ़ा अपन ने। अब उसके बाद में एग्रीगेट, एग्रीगेट मैंने 4 बताए थे, एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल, कैलोट्रोपिस, एग्रीगेट ऑफ बेरीज, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ ड्रूप, रास्पबेरी, एग्रीगेट ऑफ एकीन, रोज एंड लोटस। ये 4 टाइप के एग्रीगेट फ्रूट्स। और कंपोजिट फ्रूट के 2 ही टाइप थे, वन इज सोरोसिस, मलबेरी, पाइनएप्पल, एंड साइकोनस जो कि फाइकस, फिग प्लांट जो होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये फ्रूट वाला पार्ट रहा, ठीक है। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि फ्रूट इज बिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत सारे टाइप हैं, इतना याद करेंगे क्या, हमें तो एनसीईआरटी में तो इतना दिया ही नहीं है। देखिए एनसीईआरटी ने मेनली ड्रूप पर ही बात की है, ठीक है, लेकिन हमें सिंपल, कंपोजिट, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट
और उनमें जो फंडामेंटल टाइप है, आप देखो इनमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं सारे जो हम रूटीन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो थोड़ा बॉटनिकल नॉलेज और मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज के लिए इतना होना चाहिए। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जब आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो इन पर क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो हम इनको फ्लो चार्ट बनाकर, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया, इस तरह का चार्ट बना करके आप ध्यान रखिए। और एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत हमारे रूटीन डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल हैं, इसलिए ये 2-4 बार जब आप रीड करोगे तो ये आपको अच्छे से याद भी रह जाएंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट में हम वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, और फिर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्रूट पर बात कर चुके हैं। ओके, थैंक्स।